students, welcome back to our chapter The Simpleton and the Banyan Tree Part 2. So, let's we start the second para of the chapter. After a while, his clever brother came in and began questioning him. Well, Simpleton, have you sold your ox? Asked one. अब घर वो लौट आता है, उसके एक भाई ने पूछा, क्या तुमने अपने बैल बेच दिए? ओ यस, सोल्ड इट, रिप्लाइड द सिम्पलीटन प्राउडली। बड़े घमंड के साथ कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल मैंने बेच दिए। व्हाट प्राइस डिड यू गेट? कितने में बेचे? द सेकंड ब्रदर आस्क। दूसरे भाई पूछते हैं, कितने में बेचे? देन द फर्स्ट ब्रदर वाज क्यूरियस, सो वेयर द मनी? ही आस्क। आई हैव नॉट रिसीव्ड द मनी येट, इट वाज सेटल्ड विद द कस्टमर दैट आई शुड गो फॉर इट टुमारो। कहता है कि पैसे नहीं दिए, मुझसे बात हो गई है कि कल मैं जब जाऊंगा तो वो मेरे पैसे तैयार रखेंगे। आहा, नाउ देयर आर सिंप्लिसिटी फॉर यू, तुम कितने सिंपल हो, कितने साधारण हो। दे सेड द यूनिसन्स एंड लाफ एट हिज फुलिशनेस। और ये इस एग्रीमेंट की बात सुनकर वो दोनों आपस में हंसने लगते हैं उसकी मूर्खता पर। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द सिम्पलीटन गॉट अप एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड वेंट टू द banyan tree for his money. When he reached the wood, he was pleased to see that the banyan tree still stood there waving the wind, but the ox was not to be seen anywhere. It was happened that during that night owls had come and eaten it. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जाता है, बड़े तैयार होकर सिम्पलीटन वहां पहुंचता है, बैनियन ट्री उसको वहीं मिलती है, पर उसे कोई पैसे नहीं मिलते। लकड़ी वैसे ही खड़ी हुई है, हवा वैसे ही चलती है, लेकिन उसकी बैल उसको नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि रात को कोई लोमड़ी आया और उसके बैल को खा के चला गया। Now then neighbor, he exclaimed, pay me my money. You promised that you would pay me today. The wind blew and the banyan tree creaked, making the same sound as it had yesterday. ठीक उसी तरह पेड़ फिर से हिलता है जैसे पिछले प्रीवियस डे यस्टरडे को जिस तरह बीते हुए कल में हवा से बरगद का पेड़ हिल रहा था, फिर भी उसी तरह हिलता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। They angered the simpleton, who shouted, "What a liar you are! Yesterday you are kept saying I will pay you tomorrow." कि तुम कितने झूठे हो, तुमने मुझसे कहा था कि कल तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा। And now you make just the same promise. तुमने मुझसे वादा किया था। Well, so you be it. I will wait one day more. ठीक है, मैं एक दिन और इंतजार कर लेता हूँ, but not a bit longer. लेकिन ज्यादा दिन नहीं करूंगा। I want my money. मुझे मेरे पैसे चाहिए। When he returned home, his brother again questioning him closely. Have you got your money? Asked the brother inquisitively, and while the other brother looked at curiously. एक भाई दूसरा भाई फिर से पूछने लगता है उससे, क्या तुम्हें पैसे मिले? No brother, I have not got to wait for my money again, said the simpleton. नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने पैसे के लिए। This was only made his brother more curious. They were now annexed to and trying to get to the bottom of the case. They asked, who have you sold it? So, है ना, तुमने ये जो अपनी बैल है वो किसे बेचे हैं जो तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है? The simpleton replied confidently, to the withered banyan tree to the forest. जंगल में जो बरगद का पेड़ है मैंने उसे बेचा है। Oh, what a idiot! क्या तुम कितने मूर्ख हो? They cried. They were so disgusted with the stupidity. तुम्हारे इस बेवकूफी वाली बात पर मैं बहुत परेशान हूँ। On the third day, Simpleton took his hatchet and went to the forest, and arriving there, he was demanded his money, but the banyan tree only creaked and creaked. तीसरे दिन वो जाता है और पैसे मांगता है banyan tree से, लेकिन banyan tree के पास कोई आवाज नहीं, कुछ पैसे नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। No, no, neighbor, he said, if you are only going to make false promise, I will never get anything but you. अगर तुमने झूठा मुझसे वादा किया है, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। I don't like being made a fool of. मुझे मूर्ख मत समझो। I am going to teach you a lesson. मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। With that, he swung his hatchet in the banyan tree so that its shape flew about in all directions. Now the banyan tree there was a hollow, and it was the same hollow some robbers had hidden in a pot full of gold coins. अब जो है उसे गुस्सा आ जाता है, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जाता है और banyan tree के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उस खोखले banyan tree के अंदर उसे सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता है।
और जो वो घड़ा किसने रखा है? कुछ डाकू आते हैं, वहां पे छुपते हैं और छुपाने के लिए उस बरगद के पेड़ पर अपने सोने के घड़े रख के चले जाते हैं। द ट्री स्प्लिट स्प्लेंडर and the simpleton caught sight of the gold, and he filled as much he could into his pockets and rushed home. And it excited that he could now show his brother what payment he had got for his ox. As soon as he entered the house, and he showed his brother what he had bought. अब सिम्पलीटन घर जाता है और अब बड़ा खुश रहता है कि अब उसके पास अपने भाइयों के बोलने के लिए रहेगा कि मेरे पास गोल्ड कॉइन है। वापस लौटता है, अपने भाइयों को शो करता है कि देखो मेरे पास सोने के सिक्के हैं। थैंक यू।